Hello everyone, so today we'll see exercise 1.5 fourth question. Okay, so as we know our till question number 3 over now, so today we'll see question number 4. First here we have to find nth derivative of the following. Okay, nth derivative means we have to find first, second, third derivative, and then similarly we can observe that answers of first, second, third derivative, then we can write nth derivative. So first question will solve. So here first of all y is equals to ax plus b whole to the power m. So y derivative will come dy by dx is equals to, now here we will apply x to the power m, so m will come front m and this as it is m minus 1. Then again we have to find the derivative of this bracket, so this will be as it is. Then x derivative is 1, so a into 1, and b is a constant derivative is 0, so here will come a into 1 a. So a we can write first a m into ax plus b to the power m minus 1. So this will write as equation number 1. Now again we'll differentiate, so differentiate with respect to x. dy by dx derivative will come d2y by dx square, am is a constant as it is. Now again x to the power n we will apply to this, so m minus 1 will come front, this as it is. Again minus 1 if you will do, then minus 1 will become minus 2, and again derivative of this bracket ax plus b, so this will be as it is. Then a into x derivative is 1 plus b is a constant 0, so a into 1 a, so this a will write here, and here already 1 a, so this a and this a will become a square into m minus 1, this as it is. Suppose this as equation number 2. Now again we'll differentiate with respect to x, means we are differentiating third time. Okay, so d2y by dx square derivative will come d cube by dx cube, so here these two are this constant, and again here we will apply x to the power m, so n become front, and again here if we will do minus 1, so minus 2 minus 1 will become minus 3, and again derivative of this ax plus b we have to find, so this will be as it is. X derivative will come 1, so a into 1 a plus b is a constant 0, so this a we can write here a cube it will become. Okay, so here we can observe that when we are finding, we are getting a derivative of dy by dx, here a power is 1, in second derivative a power is 2, in third derivative a power is 3, and here in first m, then m into m minus 1, again m into m minus 1 into m minus 2, like this it is increasing. Okay, so we can observe, we can write nth order derivative. so जैसे यहाँ पे पावर 1 था, 2 था, 3 था, सो हम n डेरिवेटिव के लिए पावर n लिखेंगे, d टू द पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n. अब यहाँ 3 थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 आया, अब यहाँ n डेरिवेटिव तो n आएगा पावर m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2. अब डॉट 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 हमें लेना है, कब तक हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें तो उससे एक कम लिए, मतलब 2 m माइनस 2, थर्ड डेरिवेटिव का 3 से एक लेस करेंगे तो 2 आएगा. सेम हम nth डेरिवेटिव फाइंड करें तो n से प्रीवियस टर्म, n से पहले की टर्म होती है हमेशा n माइनस 1, और n के बाद की टर्म होती है n प्लस 1. सो हमें पहले की टर्म लेना है, तो यहाँ पे हम लेंगे m माइनस n माइनस 1. ओके, ये हमारा n के पहले की टर्म है, इनटू ये जो एज इट इज़ x प्लस b. अब यहाँ पे m माइनस 3, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया इसलिए m माइनस 3, अब यहाँ n डेरिवेटिव फाइंड करें तो m माइनस n आएगा. ओके, इजी है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कैसे क्या इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हमने n लिखा. नाउ हियर, अब ये जो हमारा है इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर m एज इट इज, इसको क्लोज ब्रैकेट में लेंगे, और ये जो x प्लस b टू द पावर m माइनस 1 इसको अलग लिखेंगे, एंड डिवाइड में m माइनस 1. अब ये देखिए, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, एंड ये x प्लस बी टू द पावर m माइनस n.
नाउ ईयर ए टू द पावर एम एज इट इज़। अब यहाँ पे जैसे हम फैक्टोरियल लेसन में हमारा 11th में हो चुका है, 5 फैक्टोरियल रहा तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो सेम हम यहाँ पे m है फर्स्ट तो हम इसको m फैक्टोरियल लिखेंगे। हम देखिए 1 तक आया है, सो we can write this close bracket as m factorial and this last term as it is, and denominator में भी देखिए m-1 से 1 तक है, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं m-1 factorial, m-n factorial। now here यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, if m greater than 0 n greater than n, m greater than n। ओके, जब यहाँ पे m greater than 0 हो और m n से भी ग्रेटर हो, सो मतलब यहाँ पे सपोज हमारा m सपोज 3 है और ये 2 है, सो 3 माइनस 2 कोई भी नंबर आएगा। ओके, सो फैक्टोरियल में ही रहेगा। सो यहाँ पे हमारा ये एज इट इज़ रहेगा जब m n से ग्रेटर हो और 0 से भी ग्रेटर रहेगा। सो हमारा ये कंडीशन पे सेम आंसर आएगा। सेकेंड केस में क्या है, जब हमारा m ग्रेटर दैन 0 है बट लेस दैन n है। ओके, व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड m इज़ लेस दैन n। अब लेस दैन n मतलब क्या है, हमारा m ये n से छोटा है। सो जब भी हमारा यहाँ पे m अगर m हमारा छोटा है n बड़ा है, सो सपोज हम 2 माइनस 3 लेंगे। ओके, 2 माइनस 3 लेते हैं तो क्या आएगा इसका -1 फैक्टोरियल। और कभी भी फैक्टोरियल निगेटिव में डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें निगेटिव का आंसर नहीं निकलता है। ओके, फैक्टोरियल लेसन में सो हमें यहाँ पे उसका इन्फिनिटी आंसर आएगा, डिवाइड में इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कोई भी नंबर या कोई भी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी आंसर। सो हमें पता है 1/इन्फिनिटी या कोई भी नंबर बाय इन्फिनिटी 0 होता है, सो इसलिए उसका आंसर 0। ओके, एक बार फिर से देखिए, m ग्रेटर दैन 0 है बट यहाँ m ये n से लेस है, m छोटा है n बड़ा है। सो n अगर हम सपोज 3 लेंगे निगेटिव में आंसर आएगा, और निगेटिव आंसर का फैक्टोरियल कभी निकलता नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स इन्फिनिटी आएगा। सो कोई भी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आता है, ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है। सो सेकेंड केस में 0। नाउ थर्ड केस, व्हेन m ग्रेटर दैन 0 एंड m n बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल रहते हैं। सपोज m और n दोनों भी 3 है, 3 माइनस 3 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। सो डिवाइड में 1 रहा, और यहाँ पे भी m और n दोनों अगर सेम रहा तो 0 आएगा, और कोई भी ब्रैकेट का पावर अगर 0, सो इंडाइसेस के रूल से उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, ये 1 हो जाएगा, डिवाइड में ये भी 1 हो जाएगा, सो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सो ओनली आंसर बचेगा a टू द पावर n इंटू m फैक्टोरियल। सो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे m फैक्टोरियल। सो हमारा ऐसे 3 केसेस फॉर्म हुए हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर, ईजी है, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले nth डेरिवेटिव का जब भी फाइंड करते हैं 2 या 3 टर्म फाइंड करिए, उसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है आंसर में, उसके हिसाब से हम n डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। So now we will see question number 3rd, y is equals to e to the power x plus b। ओके, यहाँ पे सभी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में सभी के आंसर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो y डेरिवेटिव विल कम dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x का सेम होता है, देन अगेन पावर का डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, सो ओनली a, ये 0 हो जाएगा, सो a हम आगे लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे a एज इट इज़, ई टू द पावर का डेरिवेटिव एज इट इज़, अगेन पावर का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। ये सेम x की वैल्यू 1 होती है, सो a इंटू 1 a प्लस 0, और a आएगा, a आगे आ जाएगा, ऑलरेडी एक a था, ये वाला a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम, अब यहाँ हमें मिल चुका है, हमें समझ में आ रहा है। आप लोग थर्ड का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो इसका, नेक्स्ट नहीं तो अभी डायरेक्ट भी हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पावर 1 था a,
यहाँ पे पावर 2 हो गया है और ये वाली टर्म तो सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पावर n आएगा और ये एज इट इज़। सो यहाँ पे आएगा एंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल कम d टू द पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax प्लस b। ओके, सो ये हमारा हो गया nth डेरिवेटिव। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। Now we can take this question number 5th. Y is equals to log of x plus b. Now differentiate with respect to x. Y derivative will come dy by dx. Log standard derivative we know that 1 by x. So x के जगह यहाँ पे ब्रैकेट है x plus b. So ये 1 by x plus b आएगा. Then x plus b का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा इंटू एक्स प्लस बी। सो ये एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू ए आएगा और ये 0 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे ये मिला। देन ये वाला a इंटू में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। सो दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव एज इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर सेकंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। a कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। और 1 बाई एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये याद रखिए। डी बाई डी एक्स अगर डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो 1 बाई एक्स का तो हमें आंसर आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स की जगह यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो माइनस 1 बाई ये ब्रैकेट का स्क्वायर, अगेन ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो ये ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए डिवाइड बाई ये आएगा और इसका तो डेरिवेटिव हमें याद ही हो गया, ए आएगा। सो ये वाला ए और ये वाला ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ अगेन विल डिफ्रेंशिएट फॉर थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए जो डिवाइड में है उसको अगर हम ऊपर लिखते हैं तो इसका माइनस में हो जाएगा, पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। सो इसका डेरिवेटिव आएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये कांस्टेंट है एज इट इज़। अब यहाँ पे हम एक्स टू द पावर n अप्लाई करेंगे। सो -2 आगे आएगा, फिर -2 -1 -3 हो जाएगा। हम यहाँ पे एक्स टू द पावर n अप्लाई किए। देन अगेन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम साइड में लिखेंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। इसको हमें फैक्टोरियल फॉर्म में आगे देखना है तो इसलिए हम 1 इंटू 2 लिखेंगे, 2 ही आएगा। देन ये जो माइनस था अगर इसको हम डिवाइड में लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है और इसका डेरिवेटिव होगा ए। ये वाला ए और ये वाला ए क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 2 और ये डिवाइड में एज इट इज। सो ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव हो गया। सो सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव में ए, देन सेकेंड में ए स्क्वायर, थर्ड में ए क्यूब, सो फोर्थ में क्या आएगा ए टू द पावर 4। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव, मतलब अल्टरनेट आ रहा है तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि जनरल इसका एन टर्म क्या आएगा। देन इसमें कुछ नहीं था, 1 था सिर्फ सपोज, और सेकेंड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 इंटू 2 है, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, एक एक बढ़ रहा है हमारा। सो और डिवाइड में तो यहाँ पावर, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो यहाँ पे 4 पावर आएगा। सो हम सिमिलरली ये सब ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि इसका nth ऑर्डर क्या आएगा। सो यहाँ 4 है तो यहाँ n आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अब ये भी है कि याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये बॉक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब भी आपका आंसर अगर डेरिवेटिव पहला निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव ऐसा आता है, मतलब स्टार्टिंग निगेटिव से होती है, तो आपको nth ऑर्डर में -1 के पावर पे n लिखना है। ओके, और अगर आपका डेरिवेटिव स्टार्ट होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का पहले पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, तो आपको -1 के पावर पे n-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिए। सो हमारा ये क्वेश्चन में पहले पॉजिटिव से चालू, अब पॉजिटिव से चालू इसलिए हम लेंगे -1 के पावर पे n-1, और यहाँ पे हमें पता है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये पावर 4 था तो उससे कम एक लेस करेंगे तो 3 तक लिए। अब n है तो n से एक लेस क्या होता है, अभी बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में, n-1 तक लेंगे, और इंटू
ए टू द पावर 4 है तो ए टू द पावर 4 की जगह हमारा ये n है तो ए टू द पावर n आएगा, और डिवाइड में पावर 4 था तो ये n के लिए तो पावर n आएगा। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है और लिखना है। सो हम वो जो हमारा बॉक्स था ये यहाँ पे, ये देखिए ये 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, पहले n-1 फिर डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसको फैक्टोरियल फॉर्म में हमें लिखना है। सो इसलिए हम देखो इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। अब ये हमें पता है, जैसे हम 5 फैक्टोरियल मीन्स क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो हमारे जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है n-1, तो n-1 फैक्टोरियल आएगा ये वाला एज इट इज़, एंड लास्ट में जो ए टू द पावर n है वो उसको फर्स्ट लिख लिए, नो प्रॉब्लम, एंड दिस एज इट इज़। सो दिस इज़ द लास्ट आंसर, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू cos x। ओके, सो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा, सो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे है। सो हमें पता है y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और cos का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। और अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या होता है, एक लॉजिकली अगर बताएं तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइन का कुछ कॉस आएगा, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का कुछ साइन आएगा, ऐसे माइनस प्लस जो भी है, बट साइन का कॉस या कॉस का साइन ऐसे आएगा। लेकिन लास्ट में अगर आपको फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या डिसाइड करोगे, साइन आएगा या कॉस आएगा, वो अभी हम नहीं लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम सो यहाँ पे अगर जनरल है ये, अगर फर्स्ट साइन है नेक्स्ट कुछ कॉस आएगा, फिर साइन कुछ कॉस, साइन कॉस, लेकिन लास्ट में nth ऑर्डर में क्या आएगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो माइनस साइन एक्स के उसके लिए हमें पाई प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा ऐसे फॉर्म में लाना है। सो पाई बाय 2 हमें पता है कि कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का आता है माइनस साइन थीटा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा का आता है प्लस साइन थीटा। ओके, सो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में, माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स मीन्स ये फॉर्म है, तो हम ये लेंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा के उसमें। सो थीटा की जगह यहाँ एक्स है इसलिए हम एक्स लेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, ये हम क्यों किए ये भी बता दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें nth टर्म क्या आएगी वो हमें नहीं पता था, इसलिए आपको इस फॉर्म में करना है। हमेशा अगर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में है सो आपको उसको 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा का ही लेना है, तभी आपका आंसर आएगा। सो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, पहले हमने कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिए, देन माइनस साइन का ये फॉर्मूले से हमने कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का रूल लगाया। नाउ विल डिफरेंशिएट अगेन, डी वाई बाई डी एक्स का आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड कॉस का हमें पता है माइनस साइन थीटा जो भी है ये ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, 0 आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1, सो नो नीड टू राइट, ओनली माइनस साइन। अब फिर से हमें माइनस साइन हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। सो हम माइनस साइन को लेंगे कॉस पाई बाय 2, अब थीटा मतलब ये हो गया। ओके, ये हमारा पाई बाय 2 ये फॉर्मूले का है, प्लस थीटा मतलब ये पूरा। सो अब 2 बार आएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव, कॉस का आता है क्या आता है डेरिवेटिव, माइनस साइन, और ये एज इट इज़ अगेन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो ये एज इट इज़ 2 पाई बाई, ये कांस्टेंट है 0, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, नो नीड टू राइट। देन अगेन माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। सो कॉस पाई बाय 2 प्लस, अब थीटा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, डिनोमिनेटर सेम रहा तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव। ओके, सो अब यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव में कॉस था, पाई बाय 2 प्लस एक्स हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव में कॉस ही रहेगा। ओके, यहाँ सिर्फ पाई बाय 2 है तो उसके बाद 2 पाई बाय 2 हुआ, प्लस एक्स एज इट इज़, कुछ पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये हुआ, सिर्फ पाई था वहाँ पे 2 पाई हो गया,
थर्ड में 3 पाई हुआ। और कॉस का कुछ साइन चेंज नहीं है, कॉस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। सो हम यहाँ पे क्या एक लॉजिक लगा सकते हैं कि nth ऑर्डर में क्या आएगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो वहाँ पे n में n आएगा, n इंटू पाई। ओके, सो इस तरह हम यहाँ पे n ऑर्डर निकालना है तो cos इंटू n पाई बाय 2 प्लस x। तो ये इजी है। ओके, बस ये रूल याद रखना है। पहला सभी पॉजिटिव है और यहाँ पे एंगल में पाई बाय 2, फिर 2 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, तो n में n पाई बाय 2 आएगा और प्लस x एज इट इज। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। सो यहाँ पे हमारा 6 हो गया है। 6 के बाद जो 7 और 8 क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही ट्रिग्नोमेट्री पे ही है, मतलब पाई बाय 2 प्लस एक्स में ही कन्वर्ट करना है आपको। नाउ विल सी टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9th लॉग का है। ओके, सो वाई डेरिवेटिव विल कम dy बाय dx। नाउ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ लॉग विल कम 1 बाय 2x प्लस 3 अगेन डेरिवेटिव ऑफ this as it is, then 2 into x derivative is 1, so 2 into 1 plus this 3 is a constant and constant derivative is 0. So 2 into 1 2 will come up. Okay, इसको 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1। वो ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम आगे, क्योंकि हमें एक एक बढ़ेगा वहाँ पे नंबर। एंड दिस डिवाइड एज इट इज, दिस इज एज इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ फॉर सेकंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 एज इट इज़। अब जो ये 1 बाय 2x प्लस 3 1 बाय एक्स अभी बताए थे, डेरिवेटिव क्या आता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। सो -1 बाय ये एक्स है, सोचो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अगेन ये ब्रैकेट का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। देन ये एज इट इज़ -1 को आगे लिख लेंगे, -1 इंटू 2 इंटू 1, और ये इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज अ कॉन्स्टेंट 0 डिवाइड में ये 2 इंटू 1 क्या आएगा 2। सो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये वाला 2 दो बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सो ओनली -1 इंटू 2, और ये वाला 2 इधर, ये डिवाइड में एज इट इज़। सो ये डिवाइड वाला जगह अगर हम ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई में होगा और ये पावर उसका निगेटिव हो जाएगा। नाउ फॉर थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। देन एक्स टू द पावर n अप्लाई करेंगे, -2 आगे आएगा, और यहाँ पे -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। देन अगेन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। सो ये एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये वाला माइनस हो गया प्लस, ये 1 बचा और ये वाला 2 बचा, और ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 स्क्वायर, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो 3 इज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 इंटू 1 2, सो ओनली 2 लिखे। अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये 1 इंटू 2 एज इट इज़ इंटू 2 का क्यूब, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्व देखिए क्या मिल रहा है। सो एक अगर आपको लगता है तो हम एक और डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जैसे 3 है तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, और जो एक्स टू द पावर n अप्लाई करने के बाद ये फिर ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, देन ये वाला माइनस आगे लिख लेंगे 1 इंटू 2 इंटू ये वाला 3, ये एज इट इज़, और ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा ओनली 2 बिकॉज इसको 0 है, और ये वाला जो पावर निगेटिव है इसको अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो पॉजिटिव होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये वाला 2 का क्यूब है और ये 2 क्यूब और ये पावर 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से हम nth ऑर्डर फाइंड करेंगे। हाँ, एक आपको रूल अभी बताया था, अगर आपका पहला पॉजिटिव से आंसर स्टार्ट होता है या निगेटिव से आंसर स्टार्ट होता है तो क्या देखेंगे, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव हुआ निगेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हुआ पॉजिटिव, फोर्थ डेरिवेटिव हुआ निगेटिव। सो हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपको बता रहे हैं, लिख के भी दिए, अगर आपको पॉजिटिव से स्टार्ट होता है आंसर, सो आपको क्या लिखना है -1 के पावर पे n-1। ओके, तो ये रूल हम अप्लाई करके ये लिखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 के पावर पे n-1, और ये फिर 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पावर 4 था तो 4 तक लिए, अभी पावर n है तो उसका 2 टू द पावर n तक लेंगे, और यहाँ पे 4 था तो उससे कम 3 तक मल्टीप्लाई किया। अब ये n है तो उससे पहले वाली टर्म n-1 तक रहेगी। ओके, और डिवाइड में यहाँ पावर 4 है क्योंकि उसका फोर्थ डेरिवेटिव है, तो ये nth डेरिवेटिव है तो उसका पावर n रहेगा। सो अब इसको हम उल्टा लिखेंगे, ये जो हमारा लिखा है इसको हम क्लोज ब्रैकेट दे सकते हैं। ओके, सो इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो पहले ये n-1 लिखेंगे,
देन 3 × 2 × 1। सो ये हमारा फैक्टोरियल फॉर्म में मतलब n-1 फैक्टोरियल होगा। ये वाला एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, डिवाइड में ये है उसका लास्ट आंसर है। सिर्फ इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्या उसमें मतलब हर डेरिवेटिव में क्या इंक्रीज़ हो रहा है, सो उसके हिसाब से हम nth ऑर्डर लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना है, अदरवाइज़ इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है उतना। Then we'll see question number 10th. y is equals to 1/3x minus 5. So y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। 1/x जो ये x कंसिडर करो तो 1/x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है -1/x²। सो -1/ ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देन उस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव आपको इंटू में निकालना है। सो इंटू 3x - 5। सो ये एज इट इज़ अगेन 3 × 1, 5 कॉन्स्टेंट है 0 तो ये 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। देन ये जो डिवाइड वाला अगर ऊपर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर उसका निगेटिव आएगा। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इतने में इसको लगाएंगे x⁴n और ये वाला एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ पे x⁴n अप्लाई किए हैं। देन ये इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको इधर लिखना है। देन ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 × 2 × 3, उसको ऑर्डर में लिखे हैं ये एज इट इज़। सेकेंड इसका डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है 0 और ये 3 × x के जगह 3 × 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। सो ये इसका 3 आएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़। ये हमारा हो गया है सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ फॉर थर्ड डेरिवेटिव ये 1 × 2 वैसे ही रहेगा, ये 3² भी वैसे ही रहेगा। अब इसमें हम x⁴n अप्लाई करेंगे तो n आगे आएगा, -3 -1 हो जाएगा -4। देन ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा। देन ये जो माइनस है, माइनस को फर्स्ट लिखेंगे, तो 1 × 2 इंटू ये वाला 3 × 3 का स्क्वायर और ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव आएगा इंटू 3। ये वाला 3 और ये 3 हो जाएगा 3 का क्यूब। ओके, ये ऑलरेडी स्क्वायर है और ये एक इंटू 3 करेंगे तो 3 का पावर हो जाएगा क्यूब, मतलब 3। और ये जो निगेटिव है अगर इसको हम डिवाइड में लिखते हैं तो इसका पावर हो जाएगा +4। ओके, सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ dy/dy जो फर्स्ट फाइंड किया इंटू -1 × 3 इंटू ये। ओके, देन सेकेंड में इसमें 1 × 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब वहाँ पे सिर्फ इंटू 3 था और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, एक बढ़ गया है। और वहाँ पे -2 था, पावर यहाँ पे -3 हो गया है। सो थर्ड में क्या हो रहा है, 3 का क्यूब, यहाँ स्क्वायर था यहाँ 3 हो गया, यहाँ -3 था यहाँ -4 हो गया। ओके, सो हम इस ऑर्डर में, और यहाँ पे हमारा आंसर कहाँ से, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब पहला डेरिवेटिव में निगेटिव से स्टार्ट हुआ है, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। सो हमारा जब भी पहला निगेटिव से स्टार्ट होता है तो आपको -1 के पावर पे n लिखना है, और ये 1 × 2 × 3 n तक है तो ये n तक लेंगे। और यहाँ पे पावर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किए थे तो पावर 3 आया था, तो यहाँ पे n डेरिवेटिव तो 3 के पावर पे n आएगा। और यहाँ पे देखिए पावर हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किए थे तो 4 पावर लिखे, मतलब एक इंक्रीज़ किए थे। सो यहाँ पे n डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो n के बाद की टर्म जो एक इंक्रीज़ करेंगे n+1 टर्म होती है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम क्लोज ब्रैकेट दिए तो ये उल्टा लिखेंगे, n × ... 3 × 2 × 1 मीन्स n फैक्टोरियल होता है इंटू 3 के पावर पे n डिवाइड में ये एज इट इज़। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now we'll see to our 11th question, e⁴ax इंटू cos bx + c। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है। सो दो फंक्शन जब भी आते हैं तो हमें पता है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u × v। y का डेरिवेटिव आता है dy/dx e⁴ एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो cos है उसका डेरिवेटिव पहले लिखेंगे। ओके, सो कॉस का डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस का आता है माइनस साइन, ये एज इट इज़, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा c कांस्टेंट है 0
और b इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा इंटू बी, ओके, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू ए, क्योंकि पावर का भी डेरिवेटिव आपको इंटू ए लिखना पड़ेगा। देन हम दोनों में से देख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, दोनों ये एक फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में से ई टू द पावर एक्स हम कॉमन निकालेंगे। देन हम पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे, ये हमारी पॉजिटिव टर्म है, ए इंटू कॉस पहले लिखेंगे, और ये जो निगेटिव टर्म है ये बी इंटू माइनस साइन बाद में लिखेंगे, ओके। यहाँ पे हमने पहले कॉमन निकाला है ई टू द पावर एक्स, देन ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा है और निगेटिव टर्म को बाद में लिखा है। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो दोनों को भी डिवाइड होगा, यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे बी को भी डिवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज ये फर्स्ट एज ए कॉस अल्फ़ा एंड सेकेंड एज ए साइन अल्फ़ा, ओके। सो यहाँ पे हम अगर रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, एंड इसको हमने डिनोट किया है, कंसिडर किया है कॉस अल्फ़ा से, ये एज इट इज़, और इसको हमने डिनोट किया है साइन अल्फ़ा से, और ये वाला एज इट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो ये हो गया कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, ये बाहर वाला एज इट इज़। देन कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए मतलब अल्फ़ा हो गया दोनों में भी, और बी मतलब बी एक्स प्लस सी, सो अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सो ये एज इट इज़। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ई वाले को इधर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों में फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, यू इंटू वी, और ये कांस्टेंट है एज इट इज़, हम इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस का आता है माइनस साइन, ये ब्रैकेट एज इट इज़, अगेन ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है अल्फ़ा, और सी कांस्टेंट है ज़ीरो आएगा, और b इंटू एक्स है तो b का एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 इंटू बी आएगा, मतलब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव इंटू बी, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स इंटू ए, ओके, यहाँ पे इंटू ए लिखें। देन अगेन ये एज इट इज़, और दोनों में से ई टू द पावर ए एक्स हम कॉमन निकालेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव में किए थे। देन ये पहले पॉजिटिव वाला टर्म इधर लिखेंगे, माइनस ये बी इंटू ये साइन वाला, ये निगेटिव टर्म की बाद में लिखेंगे। देन फिर से सेम हम यहाँ वहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए थे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड दोनों को इस यहाँ और यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे। देन सेम हमने इसको डिनोट किया था कॉस अल्फ़ा से, और इसको साइन अल्फ़ा से डिनोट किया। फिर से ये कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए मतलब यहाँ अल्फ़ा है और बी मतलब ये ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये दोनों को हमें प्लस करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये ए हो गया, और प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। सो ये हो गया हमारा। देन हम इसी तरह हम nth ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ पे देखिए पहले डेरिवेटिव में क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में ऊपर 1 है डिवाइड में 2 है, सेकेंड डेरिवेटिव में ऊपर 2 है डिवाइड में 2 है, तो n डेरिवेटिव में क्या आएगा, ऊपर n डिवाइड में 2, ओके, ये एक हो गया। देन फर्स्ट डेरिवेटिव में ई टू द पावर एक्स है, सेकेंड डेरिवेटिव में भी सेकेंड डेरिवेटिव इधर है, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, तो n डेरिवेटिव में ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ओके। सो यहाँ पे जो कॉस का था, कॉस में अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी है, और सेकेंड जो अभी अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे मतलब हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखना है यहाँ पे 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ बी बाय ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी एक्स प्लस सी सेम रह रहा है, सिर्फ ये बढ़ रहा है, तो हमारा वहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा इनवर्स ऑफ बी बाय ए। सो ये हमारा हो गया nth ऑर्डर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए हैं, दोनों डेरिवेटिव में, फर्स्ट भी और सेकेंड डेरिवेटिव में, और यहाँ पे हमने अप्लाई किए हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला, ओके।
सो यहाँ पे हम बता सकते हैं, देखिए tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम साइन बाय कॉस। सो साइन की वैल्यू b होती है, कॉस की वैल्यू a होती है, तो यहाँ अल्फ़ा हमारा क्या निकलता है, tan इनवर्स ऑफ, tan इधर आएगा तो इनवर्स, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय। सो यही हमने इसका ही यूज़ करके हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ है। सो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ओके, यहाँ ए की जगह 8 है, बी की जगह 6 है और सी की जगह 7 है। सेम ऐसे ही सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये लेसन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। सो जो भी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, डेरिवेटिव लेसन की आपको प्रैक्टिस और उसके फॉर्मूले याद रखना है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद रखना है। और उसके कुछ यहाँ पे देखिए रिमेंबर देखे हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, चेन रूल, इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, ये जो भी है आप लोग देख लीजिए इसका। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।